Assalamualaikum everybody. I hope you all are doing super duper well. Uh, let's start off with the recording. This is the recorded lecture, perhaps for Friday, 15th August 2025. It's literally 1:37 a.m. and I'm recording this for you. And I don't know how long this class is gonna go. We're starting at around 1:40 a.m. inshallah, raat ko, and it might go till 3 or whatever. It's gonna be a super duper long class, maybe 1 hour 15, 1 hour 30 minutes class where we're gonna be finishing the whole of chapter number 3. So I'm just starting sharing my screen, and uske baad let's officially, start off with where we left. So kahan gaya? Yeah. So I hope you guys can hopefully be able to see the screen well. Well, I see that you guys can see the screen. So let's start off with where we left. So जो आज सुबह की हमने क्लास कंडक्ट की थी in that we basically ended the class having this discussion on magnetic and solid state drives, right now we're going to be starting off with something known as the last and the third type of, what do we call it, storage device. And that is basically none other than your optical storage. So let me just write up the heading. जो हमने पहले magnetic and solid state पढ़ी थी ना, उसी तरह की this is now the third one, which is basically optical storage. Optical storage. And guess what? The battery is also low. I need to put it on charging too. I have 43%. So it feels like maybe jitni charging hui utni hi phir chalega. So now let's start off with optical storage ke andar kya cheezein aati. You might have this question in your mind, yaar optical storage mein kya hota hai, kya cheezein nahi aati. So all those things which are related to your CDs, related to DVDs, related to these games जो आपकी Xbox console वाले games होते हैं, या these movie drives वाली चीजें जो क्या कहते हैं, चीजें आती हैं जो आपकी जिसके अंदर गेम्स और ये चीजें होती हैं, तो वो जो उनको डिस्क जो इनको कहा जाता है ब्लू रे डिस्क, जिन जो आपके कंसोल के गेम्स होते हैं वगैरह, दोज आर बेसिकली ब्लू रे डिस्क. ऑल दीज थ्री टाइप्स ऑफ DVDs and all these storage stuff basically comes under your optical storage. So अब हमने सबसे पहले इसके अंदर, now we need to study all three of them individually. So we need to study what's एक second guys, screen. यार इसके अंदर एक ऑप्शन मैंने फोन के अंदर इनेबल करना था, but I guess I cannot find it right now, so छोड़ो. Now हमने सबसे पहले इसके अंदर पढ़ना है कि यार CD and DVDs को. So आप लोग को पता तो होगा what are CDs and DVDs. यार जो हम गेम्स लेते होते थे बाहर दुकानों से, या usually used to get some sort of that circular चीज like this, जिसको आप पीसी के अंदर इनपुट करते थे, मतलब डालते थे, and then you used to have something like working like that and stuff like that, right? Those are basically CDs and DVDs. Now the first thing which we need to be studying regarding CDs and DVDs is basically its operation. How do these CDs and DVDs basically work? So if I perhaps कोई laptop थोड़ा पीछे कर लूं. So now how do they work? Let's write the heading, right? How they work. This should be a question in your mind, यार कि यार इनके काम करने के पीछे लॉजिक क्या है, how do they work and what's the whole game. So होता है इस तरह, if you guys have ever wondered, या आप लोग कभी उस जो स्लॉट होती थी हमारे जिसके अंदर हम सीडी डालते थे, देयर यूज्ड टू बी लाइक अ सीडी रीडर, राइट? उसको आप इधर से बटन प्रेस करते थे, इट यूज्ड टू कम आउट, हम सीडी डालते थे, यूज्ड टू एंटर इट, एंड इसके अंदर जब एक दफा ये चला जाता है ना, तो इसके अंदर होता है एक लाइट. यूजुअली समटाइम्स इफ यू माइट हैव इजेक्टेड समथिंग, सीडी के ऊपर थोड़ी सी कोई लेजर लाइट लग रही होती है. सो the main mechanism behind how CDs and DVDs work is that they use laser light to read and write data. Laser light to read and write data. Read/write data. तो इसका ये मतलब हुआ कि यार जो भी हमारे कंप्यूटर के अंदर सीडी या डीवीडी से हमारे पास डेटा होता है ना, दैट इज बेसिकली ओके. सो वी डू हैव सम इश्यूज काइंड ऑफ, क्योंकि माय जो वो है क्या कहते हैं ग्राफिक टैबलेट, वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा. इट्स नॉट like coming to that eraser mode. But चलो never mind. So now they use laser light to read write data. ये तो समझ आ गई.
लेकिन अब ये डेटा सीडी के ऊपर स्टोर कैसे होता है, लेट मी सी इफ आई हैव अ पिक्चर फॉर दैट, मैं वो आप लोग के लिए शेयर कर लेता हूँ, दैट वे इट विल बी इजियर फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन. सो या, लेट मी जस्ट टेक दिस पिक्चर फ्रॉम द बुक एंड फिर इसके साथ आप लोग को एक्सप्लेन करूँ ना तो बेहतर समझ आ जाएगी इंशाल्लाह. सो लेट मी जस्ट इनलार्ज इट, नॉट दैट मच बट इतना कर लेते हैं. एंड सो नाउ गाइस, ये आप लोग के एक सीडी का ओवरऑल जो वो होता है ना, क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर, इट इज समथिंग लाइक दिस. नाउ व्हाट हैपेंस इज कि ये जो सर्कुलर डिवाइस है ये तो सीडी है, लेकिन इसके ऊपर जो डेटा स्टोर होता है ना, दिस इज बेसिकली अ टाइप ऑफ मेटालिक अलॉय. एंड ये मेटालिक अलॉय जो है ना, इट हैज अ लेयर ऑफ लाइट सेंसिटिव ऑर्गेनिक डाई. सो जो हमारा डेटा स्टोर होता है ना, दैट इज बेसिकली स्टोर्ड ऑन दिस मेटालिक alloy, या फिर हम कह सकते हैं ऑन लाइट सेंसिटिव ऑर्गेनिक डाई लेयर. सो दिस इज बेसिकली अ लेयर. जितनी गोल चीज है ये सही है, ये जितनी गोल हमारे पास ये जो डिवाइस होती है ना आपकी, जो जो सीडीज को आप देखते हैं नीचे से आपको अपनी शक्ल ही नजर आ रही होगी, तो वो क्या चीज है, इट इज बेसिकली अ मेटालिक एलॉय या इट इज सम सॉर्ट ऑफ लाइट सेंसिटिव ऑर्गेनिक डाई लेयर. तो हम ये कह सकते हैं कि डेटा डेटा एक सेकंड. सो डेटा is stored in a thin metallic alloy. What's this thin metallic alloy? This metal alloy is basically आपके जो CD जो हम बोलते हैं ना, ये CD, this is basically the metal alloy. सही है, या ये चीज होती है, या इसी तरीके से एक और मटेरियल यूज किया जा सकता है जो कि होता है बेसिकली a light sensitive organic dye. So light sensitive ऑर्गेनिक डाई. लेकिन अब ये ऑर्गेनिक डाई वो वाला नहीं है जो मैं कहूँ कि यार जिससे आप किसी चीज को कलर करे या कुछ. दिस लाइट सेंसिटिव ऑर्गेनिक डाई इज बेसिकली इन फॉर्म ऑफ अ लेयर. तो मतलब हमारे पास एक सर्कुलर लेयर होता है लाइक दिस, जिसके ऊपर लाइट सेंसिटिव ऑर्गेनिक डाई अप्लाइड होती है. तो जितना हमारा डेटा होता है, दिस इज डेटा, ओके, दिस इज डी. सो जितना हमारा डेटा होता है दैट इज बेसिकली स्टोर्ड इन दैट वेरी स्पेसिफिक पार्ट. तो या हमारी ये मतलब सर्कुलर उसमें होता है जो कि मेटल एलॉय होता है, या फिर इस तरह की लाइट सेंसिटिव वो होता है. होता किस तरह यार, हमारे पास एक इस तरह का स्पाइरल ट्रैक स्टार्ट होता है फ्रॉम द सेंटर, इट गोज 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 गोज. एंड इसके साथ जब इसको रीड कर रहे होते हैं, तो जैसे हमने कल पढ़ा था, तो वी आल्सो हैव सम रीडिंग हेड अप हियर, राइट. सो जब वो आपका डिस्क स्पिन होते हैं ना, मतलब आप लोग की होते हैं इस तरह, आप अंदर डालते हैं एंड दिस बेसिकली स्टार्ट रोटेटिंग जस्ट द सेम सिमिलर टू हार्ड डिस्क, ओके. आपका ये इसको रोटेट करने लग जाता है एंड एट द सेम टाइम आपका जो ऑप्टिकल हेड है, दिस माइट बी लाइक द ऑप्टिकल हेड, द वन व्हिच रीड्स इट यूजिंग व्हाट, यूजिंग दैट लेजर लाइट. तो इसके लेजर लाइट से इट बेसिकली फॉलोज द track and it is basically going to read data. So if there is a third point about you in your exam asking you how do series work, तो आप लोगों ने थर्ड पॉइंट के अंदर ये लिख देना है कि बेसिकली जो आपका स्पाइरल ट्रैक होता है, देयर इज लाइक अ सिंगल स्पाइरल ट्रैक, देयर इज अ सिंगल स्पाइरल ट्रैक. स्पाइरल ट्रैक किसे कह रहे हैं, स्पाइरल ट्रैक इज बेसिकली दिस सर्कुलर ट्रैक. ये आप देख रहे हो, ये छोटे छोटे सर्कल्स जो है, ये सारे एक सर्कल है ना, ये सर्कल सर्कल सर्कल, ये सारे स्पाइरल ट्रैक्स है. सो वी हैव सिंगल स्पाइरल ट्रैक फ्रॉम सेंटर, जो कि सेंटर से स्टार्ट होता है एंड इट गोस टिल योर एजेस. सो दैट इज बेसिकली वन आउटलाइन और अ फीचर और अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सीडी. एंड हाउ डू वी रीड द डेटा, बेसिकली द डिस्क स्पिन्स, डिस्क that basically spins, which basically while it is spinning, the optical head, what it does is कि यार वो इसको follow करता है. So while the optical head follows the track, कौन सा track, it basically follows the track of this what do we call it, हमारा जो ये स्पाइरल ट्रैक, ये सिंगल स्पाइरल ट्रैक देख रहे हैं, ये जो सर्कल लाइंस है, इन्हीं लाइंस के ऊपर बेसिकली डेटा हमारा पिट्स एंड लैंड्स के फॉर्म में स्टोर होते हैं. ये इसको अभी हम पढ़ते हैं. लेकिन अब होता ही है कि यार जिस तरीके से हमने कल सेक्टर्स पढ़ा था ना, उसी तरीके से हमारा जो ये वाला खाता होता है ना, इसको भी हम सेक्टर्स के अंदर ही डिवाइड करते हैं. लेकिन कल हमने क्या पढ़ा था कि सेक्टर्स के बाद मैग्नेटिक हार्ड डिस्क के अंदर क्या होता है, ईच ऑफ दिस बिकम अ सेपरेट लेयर. जो आपका सीडी होता है ना, उसके अंदर एक खाता डिफरेंट होता है. उसके अंदर आपके पास ये होता है कि इफ आई, ये देखो ये जो एक लाइन है ना, दिस लाइन, मे बी दिस लाइन, दिस लाइन, इफ आई जूम इन दिस लाइन, इट बेसिकली कम्स अप एज समथिंग लाइक दिस. ये इस तरह का होता है जिसके अंदर हमारे पास होता है पिट्स एंड लैंड्स. सो हमारे पास सिंपल अल्फाज में द स्ट्रक्चर इज समथिंग लाइक दिस. इसके अंदर एक फ्लैट होती है, उसके अंदर खड्डे जैसे लोगों ने नहीं बनाए होते, तो वो होता है. अब जो हमारे
डेटा होता है ना, डेटा इज बेसिकली स्टोर्ड इन दिस स्पेसिफिक मैनर। मे बी जो आपका लैंड्स वाला पार्ट हो, दिस माइट रिप्रेजेंट 0, पिट्स माइट रिप्रेजेंट 1। अगेन दिस इज नॉट इन कोर्स, आपको कोई पता नहीं होना चाहिए कि ये रियली वो करता भी है या नहीं करता, लेकिन इस तरीके से बेसिकली योर डेटा इज स्टोर्ड ऑन पिट्स एंड लैंड्स। तो अगर हमसे पूछा जाए एक क्वेश्चन के अंदर कि यार हाउ इज बेसिकली डेटा स्टोर, तो हम ये इस तरह बोलते हैं, लेट मी राइट इट अप हियर विद अ रेड पेन। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि डेटा is stored in pits and lands on a spiral track, and lands on a spiral track on a spiral track क्या हो गया? Okay, yeah, I'm still here, stay in the call. Recording it like without being in the as in कि like कोई है नहीं, तो it is आपने 2 मिनट के अंदर कोई तो we're gonna end the call, but let's stay in the call ना end करना से। So data is stored in hands on a spiral track, and उस spiral track की वजह से होता क्या है? Thanks to that spiral track, the and उसके a red laser, a red laser. Remember the word red is very important. सही है, CDs and DVDs के लिए red laser is very important. आपने red laser लिखना है, laser नहीं। A red laser is used to read and write data. Read एंड राइट डेटा। जब मैं रीड का बोलता हूँ ना, रीड मीन्स कि यार अगर आप सीडी डालते हो तो जो डेटा आपका कंप्यूटर देख सकता है, समझ सकता है, दैट इज रीड। राइट बेसिकली मीन्स कि यार अब मैंने कोई चीज कॉपी करके उसके अंदर डाल दिया, तो यार वो सीडी के अंदर कोई न्यू चीज आए, दैट इज बेसिकली राइटिंग डेटा। सही। सो अब इसके अंदर हमारे पास सीडीज एंड डीवीडीज के ना एक स्पेसिफिक टाइप होते हैं। क्या? अच्छा, आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि यार ये पिट्स एंड लैंड्स क्या होते हैं। तो बेसिकली होते हैं इस तरह के, जब हम कोई न्यू डेटा डालते हैं ना, तो मे बी अगर ये एम्प्टी इस तरह का खाली स्लॉट हो ना, ये ऊपर वाला, तो इसके अंदर ये लेजर बेसिकली बर्न कर लेते हैं, इसको इस तरह बर्निंग कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ये एक पिट्स बन जाती है, हमारे पास पिट्स बन जाते हैं, एंड ये हमारे पास लैंड रह जाती है। सही। तो हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट इसके अंदर बेसिकली यूज होता है कि जो हमारे लेजर लाइट होता है वो इसको बर्न करते हैं। व्हेन आई वांट टू राइट समथिंग, आप लोग ने कभी देखा भी होगा, व्हेन यू बाय दैट सीडी, खाली सीडी आप बाहर मार्केट से ले लो एंड आप उसको कंप्यूटर के अंदर डालो, तो आपके पास ऑप्शन आता है टू बर्न डेटा। आपके पास ऑप्शन आता है टू बर्न डेटा। तो व्हाट डू वी मीन बाय दैट बर्निंग डेटा? बर्निंग डेटा बेसिकली रेफर्स टू हाउ यू कैन इन सिंपल अल्फाज, वेरी सिंपल अल्फाज, क्रिएट दीज पिट्स। एंड वो पिट्स क्या होते हैं? बेसिकली स्टोर्स द डेटा। तो जब भी हमने किसी सीडी के अंदर डेटा डालना होता है, इवन लाइक अगर आप लोगों में से कोई अभी खाली सीडी कंप्यूटर के अंदर डालो, उसके अंदर डेटा डालना होता है, तो आप लोग ने उसको बर्न करना होता है। दैट बर्न बेसिकली मीन्स कि जो आपका रेड लेजर है उसकी वजह से हम पिट्स बना लेते हैं। बाद में इफ आई वांट टू रीड इट, तो वही लेजर जब पिट्स को वो करते हैं, तो उससे आइडिया हो जाता है कि ओ दिस इज अ पिट, दिस इज अ लैंड। तो मतलब ये 0 1 1 0 इस तरह की क्या कुछ डिनोट करना चाह रहा है। तो इस तरीके से बेसिकली हमारा डेटा स्टोर होता है। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने शायद जब बाहर मार्केट में होते हो, आप लोग इस तरह देखो, इस सीडी इस तरह होती है ना, इस सीडी के ऊपर कभी कभार यहाँ पे एक दो चीजें लिखी होती है, CDR, या कभी कभार होता है इस तरह की सीडी होती है लेकिन उसके ऊपर लिखा होता है CDRW। Now, maybe you might not have thought about this earlier on, but we do have these two characteristically different DVDs and CDs available up here. So, जब भी आपके CD या DVD के साथ the word R comes, R, R. This R basically means write once. राइट वंस का बेसिक मतलब ये होता है कि यार अगर इसके अंदर ये मैं खाली बाहर से ले लूं, मैंने इसके अंदर एक चीज डाल दी और उसको मैंने बर्न कर दिया, तो बस उसके बाद उसके अंदर कोई न्यू डेटा ऐड नहीं हो सकता। न्यू डेटा कैन नॉट बी एडेड। सही है। जैसे आप लोग ने कभी देखा भी होगा, आप लोग बाहर मार्केट से सीडी ले लो, तो उसके अंदर अगर आप कोई चीज कॉपी करके पेस्ट करना चाहो या कुछ करना चाहो, तो यूएसबी की तरह उसके अंदर डेटा नहीं जाता। व्हाई? बिकॉज दैट डीवीडी और दैट सीडी इज बेसिकली राइट वंस वाली, इट इज द सीडीआर। क्योंकि सीडीआर का ये कि एक दफा बर्न हो गई तो बस बर्न हो गई, मतलब एक दफा लेजर ने वो लिख दिया तो हो गया, उसके बाद कोई खाता नहीं है। सही है। जस्ट अ मिनट गाइस। सही। चलो एक सेकंड गाइस, वो मैं जरा एक चीज मैसेज कर रहा था। सुनाओ सुनाओ। आर का तो हमें पता लग गया। अब RW क्या होता है? यू माइट हैव एन आइडिया। ओके,
You might have an idea. So RWO basically refers to rewrite many times. Rewrite many times. अब रीराइट मेनी टाइम्स का ये मतलब होता है कि यार जिस तरह हमारे सिंपल यूएसबी वगैरह होते हैं, मैंने एक डेटा डाल दिया, उसको मैं बाद में डिलीट करके फिर से वो करता हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये जो हमारे पास ये टाइप ऑफ डेटा होता है ना, दैट इज बेसिकली नोन एज अ रीराइट मेनी टाइम्स वाला डेटा, जिसके अंदर मतलब अगर मैं न्यू डेटा डालना चाहूँ तो मैं वो भी डाल सकता हूँ, मैं कोई डिलीट करके फिर डालना चाहूँ तो वो चीज़ें भी हो सकती है, तो वगैरह वगैरह। ये सारा का सारा इसको कहते हैं रीड राइट। तो अगर हम लोग कोई री राइट वाली वो सीडी लेते हैं, दैट इज यूजुअली एक्सपेंसिव टू, लेकिन इट वर्क्स लाइक योर यूएसबी। जिस तरह हमारे फ्लैश ड्राइव होते हैं, तो उस तरीके से हमारे मेमोरी स्टिक्स के कॉन्टेक्स की तरह इट ऑपरेट्स। तो जो हमारे डीवीडी या सीडीज है, उनका बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको ऊपर समझाया है। इस तरीके से आपको होता है, लेजर लाइट होती है, डेटा आपका पिट्स एंड लैंड्स में स्टोर हुआ होता है ऑन अ स्पाइरल ट्रैक, और अ रेड लेजर इज यूज्ड टू रीड एंड राइट द डेटा। सही, ये तो समझ आ गई, राइट? अब वैसे आप लोग सोचते होंगे कि यार कुछ होती है सीडीज, कुछ होती है हमारे पास डीवीडीज। What are the main differences between CD and DVDs? Right, that's a good question. But what happens is कि the DVD आप लोगों ने देखा होगा, like if you want to buy some game, it's usually DVD. Why? DVD allows one thing which the CDs do not. It has a higher capacity. How does it have a higher capacity? Basically, तो आपका DVD होता है ना, DVD has one thing. It uses dual layers. It uses dual layers. Dual layers का ये मतलब है कि यार if I have a CD which might be like this, like अगर मैं CD को इस तरह रख लूँ horizontally, so this might be a CD, right? And इसकी storage होगी maybe 500 MB. डीवीडी क्या करती है कि इट बेसिकली कंबाइंस सच टू सीडीज, एंड इट बेसिकली कंबाइंस इट यूजिंग सम गम और समथिंग लाइक दैट। लाइक उसके अंदर स्पेसर लगा होता है, थिन सा रिफ्लेक्टर होता है, विच बेसिकली इंश्योर्स कि ये दो लेयर्स को हम इकट्ठा कर लेते हैं, तो दोनों 500 की हुई। तो इफ आई कंबाइन इट इनटू अ सिंगुलर डिस्क लाइक अ डीवीडी लाइक दिस, so this is now 1000 MB wali DVD. So this is how your DVD basically works. It uses dual layers, which allows it to have way more higher capacity. Dual layers का मतलब क्या है? It basically means कि यार हमारे पास जो है ना, we have two layers, two separate layers separated by a transparent spacer and a thin reflector. Spacer plus thin reflector. सो थिन रिफ्लेक्टर का काम ये होता है कि यार डेटा क्लियरली अगर ऊपर से नीचे वाले में हमने भेजना है, या कोई इस तरह का रीड राइट हो, तो वो रिफ्लेक्टर अलाउस के यार डेटा रीड वगैरह हो। ट्रांसपेरेंट स्पेसर का ये होता है कि दरमियान में जगह को थोड़ा सा वो करे। एंड बेसिकली जो लेजर होता है, इट बेसिकली फोकसेस डिफरेंटली टू इंश्योर कि यार हर लेयर से डेटा वो किया जा सके, वगैरह 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 वगैरह। तो इसमें एक और बात भी होती है कि जो आपका डीवीडी होता है ना, डीवीडी हैज और हैव बेसिकली अ pit size, smaller pit size and track width, pit size एंड ट्रैक विड्थ। समझाता हूँ, जस्ट अ मिनट। तो आप लोग मुझे एक बात बताओ, जो अभी हमने ऊपर ट्रैक पिट साइज की बात की, पिट्स आपको पता है ना क्या चीज होती है? पिट्स आर बेसिकली ये वाले खाती है जो खड्डे बनाने वाले। तो इसके अंदर क्योंकि खड्डे छोटे बन सकते हैं, उन्हीं छोटे खड्डों में उतना ही डेटा स्टोर किया जा सकता है जो सीडीज में बड़े खड्डों में होता था। तो खड्डे इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ओके? वी नीड टू यूज द वर्ड पिट्स। सो just because we can store the similar amount of data in a smaller pit size and in a smaller track width, matlab track width basically refers to this thingy, like if originally it was taking this whole circular thingy to store like maybe one thing, now it might be just taking half of the width, right? So is tarike ka jo concept hota hai, half the width, if it's taking half the width, it is basically allowing you to store way more data. So as a result of this, what happens is that more data can be fit. These are few reasons why we usually prefer DVDs, because DVDs allow you to have way more space than your normal CDs. And इसके अंदर यार एक और भी ये हुआ है कि यार जो हमारे इसके अंदर मैंने आप लोग को क्या बोला है, we are making use of laser light। अब जो लेजर लाइट आपके होते हैं ना, लेजर हैव डिफरेंट सॉर्ट ऑफ वेवलेंथ इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि आप लोग फिजिक्स के अंदर पढ़ोगे। बट इन टर्म्स ऑफ सीएस आपको एक चीज पता होनी चाहिए, सिर्फ एक चीज। The lower the wavelength of laser, the lower the wavelength supported
wavelength supported, the greater the amount of storage it can carry. Greater the amount of storage it can carry. This basically means कि यार हमारे जितने, अब देखो दोनों में रेड लेजर होल है ना, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे दैट विल बी ब्लू रे, उसके अंदर ब्लू लेजर यूज होती है। अब इसके अंदर भी वो सीन है, जो आपका सीडी की जो आपके रेड वेवलेंथ होती है ना, सीडी की वेवलेंथ, सीडी वेवलेंथ, even though it's red, लेकिन the wavelength of that laser which is basically supported by CD, that is 780 nanometers, not to be memorized but for your own information. Whereas जो हमारे डीवीडी की वेवलेंथ होती है ना, डीवीडी वेवलेंथ, that is basically 650. So if I look at the above statement where I said when you have lower wavelength, आपके amount of storage जो होती है वो बढ़ जाती है. So just looking at 780 and a 650, I directly get to know कि यार DVD can store way more data than your CD. And this NM is basically the unit. NM is unit. What is it? It is basically nanometer. Nanometer. Okay. So हम ये कहते हैं 650 नैनोमीटर्स, 780 नैनोमीटर्स. अब ये हमारा सारा का सारा जो सीडी एंड डीवीडी का कॉन्सेप्ट है वो बस इतना है जो आप लोग को ये पता होना चाहिए. लेकिन अब सीडीज एंड डीवीडीज के बाद हमारे पास एक न्यू चीज भी आती है जो कि आजकल के जमाने में काफी इन है. इफ यू गाइस वांट टू बाय सम शो या मूवी वगैरह की डीवीडी, so rather than, if you like, go and buy the actual files, like not the copyrighted one, तो वो आपके ब्लूरे फाइल्स आती हैं, सही है. एंड यूजुअली दीज कंसोल गेम्स वगैरह ये चीजें, दे आर बेसिकली ब्लू रे DVDs. अब it's not blue, it's not BLUE. सही है. Usually a lot of people they make type of this mistake. It's not blue, it's BLU. And why it's BLU? Because BLUE basically couldn't be copyrighted. So because इन्होंने copyrights लेने होते कि यार कोई और ये नाम ना copy करे हमसे. So अगर blue is a universal type of name, तो वो इन्होंने blue को BLU type of कर दिया. सही. So हमने इसके अंदर बाकी जो इसका मैकेनिज्म है, इट इज वेरी वेरी सिमिलर टू सीडीज एंड डीवीडीज. जिसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है ना. इफ आई से द differences from DVD, that is important to discuss कि यार इसका और जो हमारा पिछले पढ़ा हुआ वो चीज है उसके अंदर डिफरेंस क्या है. ऑल्सो जस्ट टू गिव यू गाइस अ क्विक इनसाइट, यार अगर आप लोगों में से किसी को भी अभी तक कुछ समझ नहीं आ रही तो आप लोगों ने करना है इस तरह के उस पार्ट की आप लोगों ने ले लेनी है पिक्चर, एंड यू जस्ट हैव टू व्हाट्सएप दैट पिक्चर टू मी, सो दैट ऑन माय व्हाट्सएप number, and I will get back to you inshallah as soon as possible. So now what are the differences from DVD? That should be a question in your mind कि यार बाकी तो हमें समझ आ गई, but what's the key difference between DVDs and Blu-ray? So the very first difference is in terms of laser. So laser type is a very very different element in DVDs and in optical storage Blu-ray. क्यों? जो आपका laser type आपके Blu-rays में use होती है ना, that is basically blue laser. आपको मैंने अभी बोला है ना कि उसके अंदर हमारा जो होता है that is basically blue laser, and blue laser allows you to have a way more less wavelength. So the wavelength is way more lower, is way lower. कितनी होती है वैसे? It is around तकरीबन 405 nanometers, is way lower. So we have it around, यार ये मैं क्या कर लेता हूँ, let me write it right, correct तरीके से, is way lower. कितना होता है usually? It is usually around 405 nanometers. तो when something is like 405 nanometers, तो आप लोग खुद सोचो, मैंने ऊपर बोला है कि जितने लेस होगी उतनी ही ज्यादा स्टोरेज होगा. तो going from 780 to 650 might be a difference of like 500 MB to like 4-5 GB. यहाँ पे 405 nanometer में आ रहे, तो अब आप लोग की 405 nanometer might allow your file to be like 70-80 GB वाली capacities में आ जाती है. सही है. So all thanks to it, all thanks to this lower wavelength. And why do we have such lower wavelength? Because we are using a blue laser. Blue color की usually wavelength कम होती है. So if we introduce a new laser which is basically of a color जिसके और further less wavelength, तो every color has a wavelength of. सही है. तो मतलब आप लोग ये फिजिक्स में पढ़ोगे तब आप लोग को अच्छे समझ आएगी. प्रिज्म के जो कलर्स होते हैं हर कलर का अपना वेवलेंथ होता है. सो द मोर यू गो टुवर्ड्स द lesser wavelength value, the more storage you can basically have. And also apart from that, one other difference is that जो आपका Blu-ray होता है, Blu-ray one has basically way more smaller lands and pits and lands. And because it has smaller pits and land, it basically allows
way more storage. So हमारा जो storage वाला part होता है, it basically goes up to a very large value thanks to the smaller pits and land. अब इसका बनने का क्या तरीका है? It has basically it can be made टू तरीकों से. एक तो ये कि जैसे हमने सीडीज का पढ़ा है, वी माइट बी एबल टू हैव अ सिंगल लेयर ब्लू रे. इसके अंदर यही होता है कि यार एक ही बेसिकली हमारे पास वो आ गया, पॉलीकार्बोनेट की डिस्क आ गई, थिक. हमारे पास एक ही सिंगल डिस्क, मतलब अगर मैं बोलूं एक ही हमारे पास डिस्क आ जाए ना, एक सिंगुलर डिस्क, मतलब ये मैं अभी आप लोग को जो समझा रहा हूँ, दिस इज बेसिकली आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि यार ब्लू रे जो हमारे पास डिस्क होती है वो किस तरीके से बनी जाती है. तो एक तरीके तो हमारे पास ये है कि यार एक सिंगल लेयर में बनी जाए, विच बेसिकली मीन्स कि वी हैव थिक सिंगल polycarbonate disk. Polycarbonate disk. And what does this polycarbonate disk do? It basically stores data. सही है. एंड एक दूसरा तरीका इसका ये होता है कि यार हम जैसे डीवीडीज के लिए हम दो सीडीज को कर लेते थे ना, तो इधर हम दो ब्लूरे डिस्क को अगर इकट्ठा कर दें तो हम वो करके डुअल लेयर ब्लूरे के डिस्क भी बना सकते हैं, ब्लूरे डिस्क. अब उसके अंदर होता क्या है? उसके अंदर खाता ही है कि यार वी आर बेसिकली सैंडविचिंग टू 0.6 मिलीमीटर डिस्क. सो सैंडविच ऑफ टू डिस्क्स. हमारे बुक के अंदर इन डिस्क्स की विड्थ भी मेंशन्ड है, बट दैट इज नॉट समथिंग जो कि आपको याद होनी चाहिए, लेकिन स्टिल हम वो कर लेते हैं. सैंडविच ऑफ टू डिस्क क्या? 0.6 मिलीमीटर की दो डिस्क होती है. या फिर हम ये कर सकते हैं कि अगर हम सिंगल ही यूज करें तो सिंगल के अंदर हमारी जो एक होती है उसी एक की विड्थ बेसिकली 1.2 मिलीमीटर होती है. तो एट द एंड दोनों की जो विड्थ होती है वो सिमिलर ही होती है, लेकिन जो आपके दो वाले में होते हैं डुअल लेयर वाले में, तो उसमें आपका फायदा ये होता है कि यार आप दो छोटी छोटी को इकट्ठा कर लेते हैं. तो यूजुअली डुअल लेयर वाली ज्यादा, इन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो डुअल लेयर वाली ज्यादा प्रेफर की जाती है. अपार्ट फ्रॉम दैट आप सोच रहे होंगे कि यार इसमें अपार्ट फ्रॉम स्टोरेज व्हाट अदर बेनिफिट डू आई हैव व्हाइल यूजिंग ब्लू रे डिस्क. तो उसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी ब्लू रे डिस्क है, दे आर वे मोर सिक्योर. Why are they secure? Because all the Blu-ray discs which we basically have in the world, they have a built-in encryption system. Built-in encryption system. And this encryption system basically allows कि यार अगर मैं सोचूं ओ भाई क्या कर रहा हूँ, my bad, just a moment. Encryption. So आप शायद सोच रहे होंगे यार कि अगर मैं अभी जाके मे बी कॉल ऑफ ड्यूटी गेम की एक्सबॉक्स डीवीडी ले लूं, उसको मैं कंप्यूटर के अंदर डाल दूंगा, सही है, उधर मैं डेटा फाइल्स कॉपी कर लेता हूँ, फिर मैं किसी यूएसबी में डाल के यूएसबी कंसोल के साथ कनेक्ट करूँ तो क्यों नहीं चलता है? दैट शुड बी अ क्वेश्चन इन योर माइंड, राइट? बिकॉज अब ये जो चीजें हैं, दीज आर बेसिकली अ ब्लूरे डिस्क बेसिकली अलाउज सिक्योरिटी. क्यों? क्योंकि उसके अंदर बिल्ट इन इंक्रिप्शन होती है, जिसकी वजह से आप कॉपी नहीं कर सकते, सिर्फ कंसोल समझ सकता है, उसके बगैर कोई चीज उसको एग्जीक्यूट कर ही नहीं सकता. सो इट हैज अ बिल्ट इन इंक्रिप्शन सिस्टम व्हिच बेसिकली ensures and to it basically prevents will be a better word to prevent पायरेसी. अब पायरेसी किसे कहते हैं? पायरेसी इसी बोलते हैं कि यार जो आप लोग ये इंटरनेट से फ्री गेम्स डाउनलोड कर रहे होते हो, तो ये तो क्रैक्ड गेम्स है ना, तो ये हम अभी क्रैक्ड गेम्स को कम किया जा रहा है. व्हेन यू हैव स्टफ लाइक द कंसोल के गेम्स, आपको कॉपीज क्यों नहीं मिलती? इस तरह आप दुकानों में आप जाए ना, आपको कभी Xbox One के ऊपर किसी गेम की कॉपी मिली है? नहीं ना. व्हाई? बिकॉज दीज गेम्स बेसिकली कम इन फॉर्म ऑफ ब्लू-रे डिस्क, एंड दीज ब्लू-रे डिस्क हैव अ बिल्ट इन एन्क्रिप्शन सिस्टम व्हिच बेसिकली इंश्योर्स कि यार व्हेन यू आर ट्राइंग टू कॉपी इट और समथिंग, तो आपकी पायरेसी को प्रिवेंट करे, क्योंकि इंक्रिप्शन से यार आपके कंप्यूटर को समझ ही नहीं आती कि यार डेटा कॉपी क्या हो रहा है, वगैरह 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 वगैरह. सो एट द एंड अगर इसमें अंदर मैं आपको स्टोरेज कैपेसिटी की बताऊं, तो आपकी ब्लू रे डिस्क हैज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपेसिटी लाइक 50-60 जीबीज. फिर डीवीडीज आते हैं मे बी लाइक समथिंग लाइक 4.75 जीबी, एंड देन वी हैव सीडीज. Sorry guys. So 1 GB or maybe even less than that. एक सेकंड guys, एक सेकंड. So, yeah, sorry for the delays, but with that, we are officially done with Blu-ray discs. Now, Blu-ray disc wala khata ho gaya. We are basically, in very simple alfaz, done with chapter number, almost done with chapter number 3.3. Now, we are left with last two things, जो कि हमने अभी काफी इंशाल्लाह डिटेल में पढ़नी है. अभी we do have time, right? I started at 1:34.
सो अनलेस अनटिल और अनलेस 1 घंटे तो हमें पूरा करना ही है ना इंशाल्लाह, उसके बाद फिर देखा जाएगा आगे हम जाते हैं नहीं जाते। एंड मोस्ट प्रोबेबली आई एम प्लानिंग ऑन फिनिशिंग द टॉपिक राइट नाउ, ताकि मंडे से एटलीस्ट आप लोग को फिर ये चीजें ना पढ़नी पड़े। सो नाउ बैक टू वे वी वर। सो नाउ वी आर डन विद चैप्टर नंबर 3.3। नाउ वी नीड टू स्टडी सम कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर होता ही है कि यार आप मुझे एक बात बताओ। वी गोइंग टू स्टडी अ कॉन्सेप्ट नोन एज वर्चुअल मेमोरी। चलो पहले नाम लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको डिस्कस कर लेंगे। वर्चुअल मेमोरी। What do we have to study in virtual memory? That should be a question in your mind. अब आप मुझे एक बात बताओ यार। लेट्स से फॉर इंस्टेंस अभी क्लास की रिकॉर्डिंग आप लोग सारे देख रहे हैं। यू गाइस आर मे बी प्लानिंग ऑन प्लेइंग फीफा ऑन योर कंप्यूटर। लेकिन द प्रॉब्लम इज कि यार फीफा रिक्वायर्स 6 GB रैम। सिक्स यार, 6 GB रैम, 6 GB रैम से इट रिक्वायर्स 6 GB रैम। लेकिन आपके पास जो कंप्यूटर है उसके अंदर करंटली यार 5.5 GB अवेलेबल है। 5.5 GB अवेलेबल है। नाउ is there any way possible, this is the amount of RAM I have right now on my computer, this is in my RAM, see, but I need what, I need 6 GB RAM to play FIFA. What do I mean by 6 GB RAM? This basically means that if I copy all the files of FIFA onto my RAM, so I should be having at least 6 GB to ensure that it runs properly. But I have 5.5 GB available. Now, can I play FIFA? Well, you might be saying, "Yaar, no, you cannot play FIFA." But what if I create a sort of invisible memory? Invisible memory. And maybe that invisible memory allows your RAM to have some 500 extra RAM. एंड उसकी वजह से होता ही है कि यार आपके यहाँ पे rather than it being 5.5 GB, it basically becomes 6 GB, and so you now can play FIFA, right? That will be something very good. लेकिन अब ये वर्चुअल हमारे पास जो इनविजिबल मेमोरी आ गई यार, ये कहाँ से आई? यू माइट बी वंडरिंग वेयर डू वी हैव दिस इनविजिबल मेमोरी कमिंग फ्रॉम? This invisible memory is basically the concept of virtual memory. Virtual memory is that type of memory which basically does not exist on your PC in actual, but it is type of that मेमोरी जो कि हम इनविजिबली क्रिएट कर दें। बट यू माइट बी वंडरिंग कि यार ये इनविजिबल मेमोरी कहाँ से आएगी? सो यार ये होता है इस तरह कि ये जो अभी मैंने 500 एक्स्ट्रा लिए ना, दिस बेसिकली कम्स फ्रॉम अ वेरी खूबसूरत चीज जिसको आज हम कल से बहुत डिटेल से पढ़ रहे हैं, एंड दैट इज बेसिकली और हार्ड डिस्क। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, हार्ड डिस्क के अंदर जगह तो होती है ना, हार्ड डिस्क का काम क्या होता है? लाइक रैम स्टोर्स डेटा। In our computer, what is that other thing which store data? It is basically your hard disk or solid state drive, SSD, right? So आपका जो hard disk या SSD होता है उसके अंदर हम एक स्पेसिफिक सेक्शन बना लेते हैं कि यार जो रैम को एक्स्ट्रा कोई 500 या 0.5 GB वाला डेटा चाहिए ना, कोई नहीं, वो डेटा आप रादर देन रैम के अंदर अगर जगह नहीं है तो आप यहाँ पे स्टोर करें। मतलब अगर सिंपल अल्फाज में आप लोग गए हो स्कूल के अंदर, कोई ऑडिटोरियम के अंदर इवेंट हो रहा है, एंड मे बी यहाँ पे 100 सीट्स है, लेकिन यहाँ पे आपको इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए 110 लोग आए हुए हैं। तो 100 लोग तो इधर बैठ जाएंगे, अब ये बाकी 10 किधर जाएंगे? या तो ये कि इसको बड़ा करो, दैट माइट बी एक्सपेंसिव, दैट माइट नॉट बी एबल टू बी हैपन, दैट माइट नॉट बी समथिंग जो कि फॉरन हो सकता है ना। व्हाट्स गोना हैपन? दिस 10, द नंबर ऑफ 10 किड्स, इट माइट बी लाइक कि हमारे पास कोई यहाँ पे क्लास हो, कोई रैंडम क्लासरूम जो कि एम्प्टी हो, एंड वी आर लाइक ओके आप 10 बच्चे आके इधर बैठ जाओ, सही है। सो ये जो ये वाला कॉन्सेप्ट है, दिस इज नोन एज योर वर्चुअल मेमोरी। सो हमारी जो फिजिकल मेमोरी होती है ना, फिजिकल मेमोरी, फिजिकल, ओ ये गाइस ये चीज करंट भी देती है, आई डिडंट नो। एक सेकंड। तो हमारे पास जो फिजिकल मेमोरी होती है ना, फिजिकल मेमोरी अगर आपसे कभी पूछा जाए तो याद रखना, योर फिजिकल मेमोरी इज ओनली वन थिंग, इट इज रैम। जो आपकी वर्चुअल मेमोरी होती है ना, वर्चुअल मेमोरी बेसिकली मींस कि यार अगर हम रैम के साथ साथ, इट इज बेसिकली रैम, बट रैम के साथ हम वो इनविजिबल मेमोरी भी डालें, विच इज व्हाट, विच इज बेसिकली स्पेस ऑन योर हार्ड डिस्क ऑन HDD या फिर SSD। ये जो ये वाला फॉर्मूला जब बनता है तो दिस बेसिकली कम्स एज योर वर्चुअल मेमोरी, एंड दिस वर्चुअल मेमोरी आपके जहन में होगी कि यार वी माइट हैव अनलिमिटेड डेटा, बट अब ये होता क्या है यार, ये चलता क्या है? बट चलता क्या है उससे पहले एक और चीज डिस्कस करनी चाहिए।
And that is, why should I basically use virtual memory? हमें पता होना चाहिए इसके पीछे logic. So the first thing is like it prevents your computer from crashing. लाइक मे बी अगर आप एक टाइम के ऊपर बार बार गूगल क्रोम को खोल रहे हो तो आपका गूगल क्रोम के ओपन होने से रैम ऑक्यूपाई होती है. इट प्रिवेंट्स योर कंप्यूटर फ्रॉम क्रैशिंग. एक सेकंड ये लिख लो तो फिर बोलता हूँ कंप्यूटर फ्रॉम क्रैशिंग. तो जब आप बार बार गूगल क्रोम को खोलते रहते हो ना आपको वो रैम बढ़ती जाती है 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 तो एट अ मोमेंट आपका कंप्यूटर या क्रैश कर जाएगा अगर आप न्यू गूगल टैब क्रोम खोलें क्योंकि उसके पास जगह नहीं होगी रैम के अंदर. क्रैशिंग से मतलब आपका कंप्यूटर नॉट रिस्पॉन्डिंग हो जाता है, हैंग हो जाता है, लैग आ जाता है. तो ये क्रैशिंग जिसे कहती है जो वो बोलते हैं नॉट रिस्पॉन्डिंग टर्न ऑफ ऐप या इस तरह की चीजें वो क्रैश उसको बोलते हैं. सही है. तो अब अगर आपका कंप्यूटर क्रैश कर गया तो फिर उस खाते में तो आपका कंप्यूटर खराब हो गया बंद हो जाता है राइट. मसले करने लग जाते हैं. बट अब क्या पता अगर वो उसके लिए मैं जो न्यू गूगल क्रोम खोल रहा हूँ उसके लिए मैं अगर वर्चुअल मेमोरी ले आऊँ तो उसकी वजह से कंप्यूटर जो मेरा क्रैश होने वाला था वो अब प्रिवेंट हो गया. इट्स नो लॉन्गर क्रैशिंग बिकॉज व्हेन माय available RAM is exceeded. When the amount of RAM I have is less than what I require, your computer is definitely going to stop working. But if I can get that extra RAM from my hard disk or SSD, I can basically make up for all this. So when RAM is full due to multiple programs running, and we want to prevent the system from crashing, we basically make use of virtual memory. So that is the main reason why we basically make use of virtual memory. It prevents your computer from crashing when ram when more ram when more ram is required than available. Required than available. So जब हमारे पास अवेलेबल से ज्यादा हो जाती है तो इट बेसिकली वी मेक यूज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट नोन एज वर्चुअल मेमोरी. अब ये तो हो गया. अब ये काम कैसे करता है? यू माइट बी स्टिल वंडरिंग कि यार अगर एक तरफ मेरे पास यहाँ पे रैम हो, यहाँ पे मेरे पास डेटा हो, यहाँ पे मेरे पास हार्ड डिस्क लगा हो, तो हाउ डज दिस होल कॉन्सेप्ट वर्क कि यार हार्ड डिस्क के पास भी डेटा मुझे ये कैसे दे रहा है, हाउ आर दीज कनेक्टेड वगैरह वगैरह. सो फॉर दैट आई हैव अ पिक्चर. लेट मी जस्ट पेस्ट द पिक्चर यहाँ पे फ्रॉम फाइल्स एंड किधर गया. एक सेकेंड, आई टुक अ फ्यू पिक्चर्स. या दिस वन. So if you guys look at this, इसको मैं थोड़ा enlarge कर लेता हूँ. So what happens is कि यार अभी ये जो हमारे पास ये 32-bit map है ना, this is my RAM. This is my RAM. This is the stuff I want to do. Okay, stuff I want to do. Stuff से I mean maybe 0 is FIFA, maybe 1 is Minecraft. Maybe this is Fortnite. Maybe this is Google Chrome, GC, Google Chrome. This might be WhatsApp. Now, the thing is, I have one, two, three, four, five. I have 5 things to do right now. This is my RAM. RAM के अंदर I have space for 1, 2, 3, 4, 5. 5 places. लेकिन oh sorry, my bad. I messed it up. This is the RAM. Okay. In my RAM, I have space for 1, 2, 3, 4. I have space for only 4 things. बट अब मे बी मैं बोलूं कि यार मैंने फीफा खेलनी है तो फीफा ऑन हो गई है, रैम से जगह ले रहे हैं. एट द सेम टाइम आई एम आल्सो प्लेइंग माइनक्राफ्ट, वो भी इधर आ गया है. मे बी आई हैव आल्सो ओपन व्हाट्सएप एंड द बैकग्राउंड एंड गूगल क्रोम भी ओपन है. तो ये 4 चीजें तो अभी रन हो रही है. बट अभी मैं बोलूं कि यार रेयान इज रिकमेंडिंग मी टू प्ले फोर्टनाइट, but Ahmed and uska dost Ahmed Suhail might be like, कि नहीं, that cannot be happen. Why? Because we don't have a space on our RAM section. अब क्या होगा? So Manal comes in alongside Saifullah and it's like, dude, you can do this one thing. You can basically make use of your hard disk and SSD. किस तरह? अब होता ही इस तरह कि यार ये तो हमने वो सारी चीजें करनी है जो हम करना चाहते हैं, राइट? ये हमारे पास रैम होता है तो हम इसके दरमियान एक स्पाइडरमैन वाला ना नेट बना लेते हैं. वी क्रिएट अ मैप. दैट मैप बेसिकली अलाउज अस कि यार एक स्पेसिफिक 0 1 2 3 4 ये हमने 4 खाने बनाए रैम के, उसी तरीके से हम एक खाना बना लेते हैं हार्ड डिस्क के अंदर. एंड व्हाट हैपेंस इज कि यार अगर आई एम करंटली प्लेइंग फोर्टनाइट तो फोर्टनाइट कहाँ पे गई? फोर्टनाइट बेसिकली गोज टू पॉइंट नंबर 0, लेट्स से. ओके, यहाँ पे उसके बाद मैंने खोल दिया गूगल क्रोम, तो गूगल क्रोम इज द सेकंड ऑफ थिंग व्हिच आई एम ट्राइंग टू डू. आई डू हैव स्पेस, तो ओके गूगल क्रोम इधर आ गई. फिर मैंने उसके बाद व्हाट्सएप खोल दिया तो व्हाट्सएप अगेन आई हैव स्पेस, तो व्हाट्सएप इधर आ गया. देन आई मे बी प्ले कॉल ऑफ ड्यूटी.
कॉड. सो अगर कॉल ऑफ ड्यूटी को मैंने खोल दिया तो कॉल ऑफ ड्यूटी कम्स अप हियर. नाउ व्हाट हैपेंस इज कि यार मे बी सैयद सैफुल्लाह टेल्स मी कि यार लेट्स प्ले अ मूवी. अब आप मूवी अभी ओपन करना चाहो तो ये हो सकती है क्या? वी डोंट हैव स्पेस इन रैम. तो यू माइट बी थिंकिंग कि यार मैं मूवी को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, राइट? यू माइट बी वंडरिंग, बट देयर इज अ प्रॉब्लम. आपको याद है हार्ड डिस्क एंड एसएसडी इज वे मोर स्लोअर देन रैम. तो what happens is कि यार इसकी वजह से एक मसला हो जाता है. If I want to watch movie but I get it into my hard disk वाला पार्ट या SSD वाला पार्ट, तो accessing this movie वाले elements and ये जो मेरे स्क्रीन पे आएंगे that will be very very slow. तो हम करते ही है कि जो अभी ये 32 बिट मैप है इसके अंदर होता ही है कि यार इफ आई वांट टू प्ले मूवी अभी, तो मैं यहाँ पे रैम दिस मैप बेसिकली डिसाइड्स कि यार इसमें कौन सी चीज है, ये फोर्टनाइट, गूगल क्रोम, व्हाट्सएप, कॉल ऑफ ड्यूटी में ऐसे कौन सी चीज है विच आई एम लीस्ट प्रायोरिटाइजिंग. सो अभी मैं फोर्टनाइट को खेलना चाह रहा हूँ, व्हाट्सएप को खेलना चाह रहा हूँ, कॉल ऑफ ड्यूटी, तो आई माइट बी लाइक ओके यार मुझे व्हाट्सएप ऑन चाहिए बट आई डू नॉट, but I'm not using WhatsApp. Okay, I'm not using WhatsApp. Why? Because it was just opened like an hour ago. So मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं है. उसके जो 4 तरीके हैं वो अभी आपके कोर्स में नहीं है, बट आपको बस ये है कि किसी तरीके से हम प्रायोरिटी को हम देख लेते हैं कि प्रायोरिटी क्या है. तो उसके बाद if I'm like okay, WhatsApp is not something which I'm keeping priority of right now. So what happens is कि मैं इस WhatsApp को यहाँ से ले आता हूँ हार्ड डिस्क के अंदर. So I basically get my WhatsApp up here. क्यों? Because I'm not using WhatsApp. लेकिन अगर उसको मैं हार्ड डिस्क के अंदर ले आऊँ तो द गुड थिंग इज कि यार वो ऑन रहेगा. इट्स नॉट गोना गो वेस्टेड, डेटा लूज नहीं होगा, इट्स गोना गो देयर. लेकिन यहाँ से क्योंकि मैंने अभी व्हाट्सएप यूज नहीं करना, कोई प्रोसेसिंग उसकी करनी नहीं है, तो हमारा डेटा अगर स्लो भी एक्सेस हो तो मुझे कोई मसला नहीं है. एंड एट द सेम टाइम दिस मूवी बेसिकली रादर देन गोइंग टू हार्ड डिस्क, उसको यहाँ से ये जो मेरा मैप बनाया 32 बिट मैप, इट अलाउज इट टू गो टू पॉइंट नंबर 2. तो मेरे पास मूवी यहाँ पे आ गई. नाउ यू माइट बी लाइक कि यार मुझे अब व्हाट्सएप ओपन करना है. आप व्हाट्सएप को ओपन करते हो, आपके यहाँ पे फिर ये प्रायोरिटी चेक की जाती है कि यार फोर्टनाइट, गूगल क्रोम, मूवी, कॉल ऑफ ड्यूटी में प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, सबसे कम प्रायोरिटी किसकी. तो यू माइट बी लाइक ओके आई एम नॉट रिक्वायरिंग गूगल क्रोम राइट नाउ. तो व्हाट हैपेंस इज कि दिस गूगल क्रोम फ्रॉम हियर दिस बेसिकली गोज इनटू माय हार्ड डिस्क वाला पॉइंट, एंड जो हमारा व्हाट्सएप होता है दिस बेसिकली गोज इनटू पॉइंट नंबर 1. तो होता ही है कि ये वाला पॉइंट फिर से आपके पास खाली हो जाता है. यहाँ पे आपके पास आ गया गूगल क्रोम यहाँ पे आ गया, व्हाट्सएप यहाँ पे आ गया. सही है. एंड इस तरीके से आपका बेसिकली सारा का सारा डेटा एक प्रॉपर तरीके से हमारे पास आ गया. इट्स मेंटेन्ड इन अ हार्ड डिस्क एंड एसएसडी. और हम ये पांचों के पांचों चीजों को, ऑल दीज 5 स्टेप्स जो मेरे पास है, इन सबको मैं एक टाइम के अंदर एग्जीक्यूट कर रहा हूँ इन द राइट मैनर रादर देन क्रैशिंग माय कंप्यूटर और एनी सच थिंग. सो दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल मेमोरी कि वी बेसिकली मेक यूज ऑफ और व्हाट डू वी कॉल इट this क्या कहते हैं यार, hard disk and SSD space. So if I want to give you a quick overview, so this only happens when our RAM is full, and once our RAM is full, the oldest data in the RAM which has the least priority, या आप लोग बोल सकते हो oldest data. सही, आप लोग oldest data भी बोल सकते हो. oldest data might be a better one. आप लोग oldest data ही बोलो. Oldest data in RAM is basically moved to hard disk and SSD. If Fortnite is the oldest one, I'm basically gonna copy Fortnite into my RAM और hard disk के अंदर जो एक specific खाना मैंने इसके लिए बनाया हो. And जो फ्री स्पेस मेरे पास यहाँ पे बच गई, ये पॉइंट नंबर 0 मेरे पास फ्री रह गया, राइट. अब ये जो मैंने कोई न्यू चीज यहाँ पे करनी है वो जाती है, वो फ्री स्पेस के अंदर चली जाती है. एंड जो मेरा मैप होता है, इट बेसिकली अपडेट्स अलोंग साइड के, लाइक मे बी इफ दिस इज फोर्टनाइट, ये वाले पॉइंट जो है विच वाज बेसिकली टू 3, दिस माइट नाउ गो टू दिस. एंड जो यहाँ पे ये जो एम्प्टी वाला स्लॉट है, दिस माइट गो टू दिस एंड सो ऑन. इस तरह का हमारे मैप ये चीजें बनती है. अब ये जो मैप के अंदर ये जो डेटा इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, वगैरह 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 वगैरह, इस प्रोसेस को बेसिकली बोला जाता है पेजिंग. So इस प्रोसेस को बेसिकली इट इज नोन एज पेजिंग. व्हाट इज पेजिंग? पेजिंग इज बेसिकली एक सेकंड, इट इज बेसिकली फिक्स्ड. इट इज दिस, एक सेकंड, बल्कि ये नहीं, इट इज द, हाँ ये दिस माइट बी अ बेटर वन. It is, let me change the color. It is the swapping of fixed size blocks of data, which is basically those data के जो pages होते हैं, जो blocks होते हैं, those are known as pages.
पेजिंग इज द प्रोसेस जिसके अंदर ये स्वैपिंग होती है. इट इज द स्वैपिंग ऑफ फिक्स साइज ब्लॉक्स ऑफ डेटा विच इज नोन एज पेजेस विद इन रैम एंड हार्ड डिस्क. तो जो हम डेटा को बार बार हार्ड डिस्क से निकाल के रैम के अंदर डालें, जो मैंने आपको अभी पहले बताया कि यार अब व्हाट्सएप हो यहाँ पे या गूगल क्रोम अभी इधर है, अब आई वांट टू ओपन गूगल क्रोम, तो अब ये गूगल क्रोम यहाँ से एक्सेस करना तो काफी स्लो होगा, राइट. तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ओल्डेस्ट में भी FN है तो फोर्टनाइट को मैं इधर ले आऊँ, गूगल क्रोम को मैं फिर यहाँ पे लेंगे. तो ये जो फोर्टनाइट के डेटा यहाँ पे जा रहा है, गूगल क्रोम का डेटा वहां पे जा रहा है, ये जो स्वैपिंग हो रही है बिटवीन रैम एंड हार्ड डिस्क, दिस प्रोसेस इज बेसिकली नोन एज पेजिंग. एंड जो इसके अंदर गूगल क्रोम के फाइल्स है जो कि यहाँ से जा रहे हैं यहाँ पे, या जो फोर्टनाइट की फाइल्स है जो यहाँ से जा रहे हैं यहाँ पे, इसको बेसिकली पेजेस बोले होते हैं. एंड ये कंटिन्यू होता है प्रोसेस, कंटिन्यू 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 जब तक हमारा काम हो जाता है. एंड सो ये हमारा बेसिकली इसके अंदर ना मेन एक फायदा होता है कि अब देखो मैं पहले अगर मैं मेरे पास जगह ना होती है, इफ आई डिड नॉट हैव दिस वर्चुअल मेमोरी, maybe if I want to play Call of Duty, so I would not have been able to play Call of Duty. Why? Because I did not have any space available in the RAM. And if I try to run Call of Duty, मुझे या computer error दे देता कि यार you do not have enough space, या my computer would have crashed. So thanks to hard disk and SSD के जो virtual memory, I can now make sure कि यार how it works. In your exam, you are basically told to create a diagram too. So you need to create a diagram like this. सही है, इस तरह का आपने वो कर देना है. You need to create a hard disk. Important points are hard disk. You need to create this mapping, map, and उसके साथ आप लोगों ने पेजिंग का वो लिख देना है कि this is basically पेजिंग का process. And you also need to show a RAM stick दरमियान. तो आपने एक इस तरह के ये वाले जो है this is best. सही, आप लोग इस तरह का कोई खाता दिखा दो and you will be good to go inshallah. So I hope this is clear. If it's not clear, definitely reach out to me in my DMs. Okay. Now, after that, हमने अभी थोड़े से पढ़ने हैं and it's 2:23 AM. Wow, got it, guys, got it. So now, it's benefits. अब हमने पढ़ने हैं benefits. Why do I need to go with this? Like, what benefits do I get? So the first benefit I get is यार, अगर मैंने कोई ऐप यूज करनी है which might require 750 MB of RAM, but I have currently only 500 MB of RAM, तो यार ये जो thanks to virtual memory, if I get this 250 extra RAM, I can run this app. So the first benefit I basically get from using virtual memory is that it allows programs larger than RAM to be run, larger than RAM to be run. सो अगर हमारे कोई डेटा लार्जर होता है रैम से, तो वो हम उसको मतलब वो कर सकते हैं कि अगर मुझे अब 250 एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि ओरिजिनली इफ आई हैव ओनली 500 स्पेस, तो ये तो बिल्कुल रन हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, जगह ही नहीं है. तो आई गेट दैट 250 एक्स्ट्रा फ्रॉम द वर्चुअल मेमोरी एंड नाउ आई कैन बेसिकली रन द होल फाइल. दैट्स वन बेनिफिट. अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारे पास एक सेकंड बेनिफिट भी इसके अंदर आता है. सेकंड बेनिफिट, क्योंकि हमारे पास ये पेजिंग की वजह से हम डेटा स्वैप कर सकते हैं हियर एंड देयर, सो हम बेसिकली वी अवॉइड wasting RAM on unused data. So अब जैसे मुझे अभी maybe my WhatsApp is like my WhatsApp is on right now. सही है, मेरा WhatsApp अभी on है, but I'm not using it. So ये मेरा WhatsApp का जो फाइल है, that is basically most probably if I need extra RAM right now, ये rather than it being in RAM, it is basically in my hard disk. And so I'm basically avoiding the wastage of RAM on some unused data जो कि मुझे अभी नहीं चाहिए. And apart from that, due to this point, क्योंकि we are avoiding wastage, the benefit is कि यार we need the benefit perhaps rather than writing it up here, इसको अलग point ही लिखो. Point number 3 is कि thanks to this, if let's say पहले अगर ये कॉन्सेप्ट ना होता एंड यू आर वर्किंग इन एन ऑफिस एंड आपको ये 750 वाला मस्ट चाहिए, तो आप क्या करते, यू वुड हैव परचेज एन एक्स्ट्रा रैम स्टिक, राइट, क्योंकि आपको तो रैम चाहिए टू रन दिस सॉफ्टवेयर. बट क्योंकि हमने वर्चुअल मेमोरी को यूटिलाइज कर दिया ना, वी कैन रन इट ऑन आवर ओन कंप्यूटर, द वन व्हिच वी हैव राइट नाउ. सो द लास्ट बेनिफिट इज दैट इट बेसिकली reduces the need for basically purchasing एक्स्ट्रा रैम. सो इसके हमारे पास ये 2-3 बेनिफिट्स आ गए. तो इसके साथ साथ एक फोर्थ बेनिफिट आपको ये होगा कि प्रिवेंट्स कंप्यूटर फ्रॉम क्रैशिंग, द वन व्हिच वी डिस्कस्ड अर्लियर. प्रिवेंट्स कंप्यूटर फ्रॉम क्रैशिंग वही लैग या फिर किसी सॉर्ट ऑफ मसले शसले या कंप्यूटर काम ना करे, नॉट रिस्पॉन्डिंग एंड ऑल दैट स्टफ बेसिकली कम्स अंडर योर क्रैशिंग. सो बेनिफिट्स तो पढ़ लिए, अब आगे क्या है. आगे अब हमने पढ़ने हैं इसके ड्रॉबैक्स. guys,
सही बंदा ना, थका हुआ हूँ लिटरली। लेट मी जस्ट स्ट्रेच अ बिट। ओए होए होए, ओए होए, सही ठक ठक निकले हैं बॉडी से माशाल्लाह। स्ट्रेचिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट स्ट्रेचिंग एट 2:30 AM इज अ डिफरेंट कहानी बाय द वे। कैन आई टेक स्क्रीनशॉट इंडिकेटिंग कि यार इस टाइम के ऊपर आई एम टेकिंग द क्लास? सो या व्हाई नॉट, यहाँ से कर लेते हैं। This is the time I'm basically taking this class on Friday 15th August 2:27 AM। ये नोट्स के अंदर कोई ये ना बोल रहा हो कि यार ये कहाँ से इसके साथ रिलेटेड है, बट ये टेकिंग क्लास एट टेकिंग यार रिकॉर्डिंग एट एंड यू गाइस नो इसके बाद मैंने MUN की तैयारी भी करनी है, सो आप लोग दुआओं में भी याद रखो। रिकॉर्डिंग एट Friday, 15th August, 2:27 AM. Dun, 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 dun. This is a part of the journey, guys. Yeah. So now we are done with benefits. Now we need to discuss a few drawbacks. कि यार अगर हम ये स्टोरेज का खाता कर ही सकते हैं, then why do I basically why do these graphic design what do we call it, not graphic designers, these designers and editors and these इसको क्या बोलते हैं, रेंडर्स, जो पीपल रेंडरिंग करते हैं या गेमर्स, why do they go with these extra rams? फिर वो भी वर्चुअल मेमोरी को यूज करें। बेसिकली इसके अंदर एक मसला है, इट इज स्लोअर देन रैम। ये जो हम हार्ड डिस्क के अंदर डेटा डालते हैं ना, इट इज बेसिकली स्लोअर देन रैम। एंड क्योंकि इट इज स्लोअर, हमारे पास बेसिकली एग्जीक्यूशन उस खाते से नहीं होती। वी हैव डिलेज, एंड वी हैव डिलेज टू समवन फॉर प्लेइंग गेम, फॉर पीपल हु आर डूइंग प्रोफेशनल वर्क, रेंडरिंग वगैरह। तो उसकी वजह से काफी मसले हो जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अंदर एक और खाता भी होता है। देयर इज अ प्रॉब्लम नोन एज डिस्क थ्रैशिंग। डिस्क थ्रैशिंग। अब डिस्क थ्रैशिंग बोलते किसे? यार अगर मैं ये बोलूं कि एक टाइम के अंदर, लेट्स से फॉर इंस्टेंस, इफ आई गिव यू गाइस एन एग्जांपल, ये जो हो रही है तो हो इस तरह है ना कि अगर यार आई एम अप हियर इन माय ऑफिस, दिस इज माय ऑफिस, एंड यहाँ पे मे बी आई हायर, लेट्स से फॉर इंस्टेंस आई हायर रेयान, एंड मैं रेयान को बोलूं कि यार ये आप हो, सही है, एंड यहाँ पे आई हैव एन ऑफिस ऑफ माय ब्रदर, ओके, ऑफिस, बल्कि परहैप्स दिस माइट बी अहमद ऑफिस, सही है। अभी अहमद का ऑफिस है एंड ये मेरा ऑफिस है, माय ऑफिस, एंड मैंने रेयान को हायर किया। अब रेयान करता क्या कि if I like 5 pages right now, and यहाँ पे at the same time I might have Saifullah sitting, Saifullah ऑफिस। अब खाता ही है कि यार अहमद सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं, 4 डॉक्यूमेंट्स, मेरे पास अभी 5 डॉक्यूमेंट्स है, तो रेयान का काम है इन डॉक्यूमेंट्स को इधर उधर पहुंचाना। अब रेयान 4 डॉक्यूमेंट्स तो अहमद को पहुंचा देगा, जो एक डॉक्यूमेंट इसके पास एक्स्ट्रा वो इसको सैफुल्ला को दे देगा, राइट। तो अब ये जो ये खाता हुआ है, ये बेसिकली वही वर्चुअल मेमोरी वाला ही खाता है ना, कि यार अगर रैम के अंदर अवेलेबल स्टोरेज है वो ये है। फिर इसको रेयान ने देख लिया कि यार सैफुल्ला के पास लीस्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो, लेट से फॉर इंस्टेंस अभी ये है कि अहमद को नहीं चाहिए, तो वो सैफुल्ला के पास उसने रखवा दिया था। बाद में अहमद को चाहिए हुई तो वो सैफुल्ला से लेकर अहमद को दे देगा, जो अहमद के पास लीस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो सैफुल्ला के ऑफिस में रखवा देगा, लेट्स से। दिस इज द होल एग्जांपल, राइट। बट व्हाट इफ यहाँ पे 100 पेजेस में खोल दूं बार बार, मे बी ये बार बार मैं खोलूं। तो अब ये रेयान कितनी बार यार यहाँ से डेटा लेता जाएगा, इधर डालता जाएगा, इधर डालता जाएगा, इधर डालता जाएगा, स्वैपिंग। इतनी दफा आपकी ये स्वैपिंग हो रही है। मतलब अगर यहाँ पे रादर देन हैविंग 5, इफ आई हैव दिस लॉन्ग लिस्ट ऑफ मे बी 15 आइटम्स, तो ये कितनी हमारे 1 सेकंड के अंदर डेटा इधर उधर हार्ड डिस्क वगैरह में जाता जाएगा। तो इट्स अ पॉइंट इज गोना कम कि रेयान विल बी लाइक, no, I am no longer working, and so Rayan is basically gonna crash out. This point is basically known as disk thrashing in your computer science. I hope आप लोग को काफी मजे की एग्जांपल से मैंने समझाया है कि जब हम काफी डेटा को बार बार स्वैप करते रहते हैं ना, तो आपका कंप्यूटर एक पॉइंट में आ जाता है वेयर इट इज नो लॉन्गर एबल टू स्वैप एनीथिंग एंड इट बेसिकली गेट्स क्रैश्ड। तो अगर इफ आई हैव टू डिफाइन लाइक राइट इट अप हियर, तो ये बोलेंगे कि when there is when there is a high read write activity, what happens is that it can, okay, when there is a high read write activity,
activity, and data is swapped at a very high rate, and data is swapped and data is swapped at a very high rate, a problem known as disk crashing basically occurs. So, yeah, and data is swapped at a very high rate. When there is a high rate, data is swapped at a very high rate, and the system is too busy just swapping data rather than executing it. It's too busy swapping data, swapping data rather than executing it, rather than executing it. The disk thrashing problem occurs. The disk thrashing problem occurs, which leads to, which basically what, which leads to your computer crashing. तो ये सीन इस तरह है कि यार अगर रेयान बार बार पेजेस इधर उधर लेकर जा रहा है, इधर उधर लेकर जा रहा है, एंड वो इतना ज्यादा डेटा हमारे पास है कि यार रेयान अगर एट द एंड रेयान में साइन करना है जिसकी वजह से आपका सीपीयू माइट भी, लाइक अगर मैं ये बोलूं कि इस एग्जांपल के अंदर मेरे पास 15 चीजें हैं एंड मैं उसको यहाँ पे रैम के अंदर ये एग्जीक्यूशन है ना, राइट, इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा, लेकिन इतना ज्यादा डेटा कि यार ये बार बार ये मैप के ऊपर डेटा निकाला जा रहा है, घुसाया जा रहा है, निकाला जा रहा है, घुसाया जा रहा है, निकाला जा रहा है, घुसाया जा रहा है, तो आपको रैम को तो मौका ही नहीं मिल रहा कि यार वो इसको एग्जीक्यूट करे। तो जब ये पॉइंट आ जाते, जब वो डेटा इतनी स्पीड से स्वैपिंग हो रही होती है, लाइक द सिस्टम इज टोटली बिजी स्वैपिंग डेटा रादर देन एग्जीक्यूटिंग इट, तो आपका कंप्यूटर क्रैश हो जाता है, एंड दैट पॉइंट इज बेसिकली जिसके ऊपर वो क्रैश हो जाता है, दैट इज नोन एज थ्रैश पॉइंट। This point is known as the thrash point. Thrash point. तो ये हमारे पास जो थ्रैश पॉइंट की लॉजिक है वो ये, और ये जो सारा ये लॉजिक है जिसके अंदर डेटा बार बार स्वैप हो रहा है और इस तरह के मसले बन रहे हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज डिस्क थ्रैशिंग। सही है। अब इसके क्या सोल्यूशन हुए जा सकते हैं कि डिस्क थ्रैशिंग को कम किया जाए? यार उसके लिए आप रैम को बढ़ा दो, आप रादर देन यूजिंग HDD हार्ड डिस्क, अगर हम SSD को यूज करें, तो हमने जो आज सुबह क्लास थी उसके अंदर यही डिस्कस किया था कि SSD इज वे मोर फास्टर देन योर हार्ड डिस्क, राइट। सो इस वजह से आपका SSD के अंदर डिस्क क्रैशिंग के अकर होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, तो ये भी एक आपको इसका बेनिफिट है। सो विद दैट वी आर ऑफिशियली डन विद virtual memory. Now, we need to start off with a new thing known as cloud storage. This is officially the start of, I guess, chapter number 3.4. And now we need to discuss cloud storage. Cloud storage. अब क्लास कितना हो गया? क्लास हैज ऑलरेडी, आई गेस, तकरीबन 1 घंटा हो गया, राइट। सो एक सेकंड गाइस, एक मैसेज करने दो। ओके गाइस, सो एक मिनट यार, आप लोग कोई नहीं, थोड़ा आगे चले जाओ, लेट मी जस्ट टेक अ ब्रेक। चलो यार, क्या मैं इधर बैठूं और आप लोग को ब्रेक दूं? लेट्स स्टार्ट ऑफ, एंड द रिकॉर्डिंग विल बी पोस्टेड यार लेटर ऑन, एंड आल्सो द टेस्ट हैज बीन पोस्टेड, so टेस्ट जरूरी देखना, सही है। So it's 2:36 and let's start off with cloud storage. I guess cloud storage करने के बाद मेरी बस ही हो जाएगी. I don't think so I can continue with 3.4. 3.4 is very less though, it's small. It's not very long, लेकिन still can't say anything. लेकिन चलो क्लाउड स्टोरेज के करके 3.4 की भी मैं कोई छोटी वीडियो आपको डाल दूंगा, सही। सो नाउ क्लाउड स्टोरेज क्या चीज होती है? कभी आप लोगों ने सोचा है एप्पल आई क्लाउड, गूगल ड्राइव,
अगर आप पीसीज यूज करते तो माइक्रोसॉफ्ट MS वन ड्राइव, ये क्या चीजें हैं? अभी आपने सोचे कि यार अगर हम गूगल ड्राइव के ऊपर कोई चीज डालते हैं, उसी अकाउंट से मैं किसी दूसरे लैपटॉप पे लॉग इन हो जाऊं, इवन दो उस लैपटॉप के ऊपर वो पिक्चर्स ना हो जो मैंने गूगल ड्राइव पे अपलोड की हो, लेकिन इफ आई लॉग इन विद द सेम अकाउंट, आई कैन बेसिकली गेट ऑल द डेटा विच आई हैव अपलोडेड ऑन द ड्राइव. ये जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू क्लाउड स्टोरेज. Now, cloud storage is basically when your data, अगर इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन कर दूं, तो इसमें होता ही है कि जो आपका डेटा होता है, the data is basically stored on remote servers, on remote servers, which are basically managed by some sort of an hosting company, managed बाय अ होस्टिंग कंपनी. मतलब मैं ये बोलूं कि यार अभी आप लोग कोई डेटा अपलोड करते हो गूगल ड्राइव के ऊपर, तो क्या ये आपके कंप्यूटर के कोई स्टोरेज आपसे ली जाए? नहीं ना, आपके कंप्यूटर पे थोड़ी, अगर आप गूगल ड्राइव पे कर रहे हो. लेकिन ये फिर एग्जैक्टली किधर, आसमान में तो कोई डेटा नहीं स्टोर है, इंटरनेट पे भी नहीं होता. एट द एंड ये भी किसी हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव के अंदर ही स्टोर हो रहे. अब वो हार्ड ड्राइव किसके हैं, कभी आप लोगों ने सोचा? ये बेसिकली किसी में भी, अगर मैं गूगल का बोल दूं, गूगल ने कोई रिमोट सर्वर्स बनाए होते हैं, उन सर्वर्स के अंदर मल्टीपल हार्ड डिस्क लगे होते हैं, तो आपका सारा का सारा डेटा उन सर्वर्स उधर स्टोर किया जाता है. तो जब भी आप वो फेच करना चाहते हैं कोई अपना डेटा, अकाउंट डिटेल्स डालते हैं, तो वो उन्हीं रिमोट सर्वर में, वो चाहे आप जिस अकाउंट से भी करें, आपका वो स्पेसिफिक हार्ड डिस्क वाला खाता वो खुल जाता है. तो इसके अंदर यही होता है कि आपका बेसिकली डेटा मल्टीपल रिमोट सर्वर्स के ऊपर स्टोर किया जाता है. अब हमने सबसे पहली जो चीज पढ़नी है वो ये कि हमारे पास तीन टाइप्स ऑफ क्लाउड स्टोरेज है. टाइप्स ऑफ क्लाउड स्टोरेज, यार लिटरली मुझे तो अभी इतनी सख्त नींद आ रही है, मैं आपको क्या बताऊं. लेकिन चलो कंटिन्यू करते हैं. We have three types of cloud storage. The first type of cloud storage is known as the public cloud storage. अब इनकी जो ये पब्लिक क्लाउड है, प्राइवेट क्लाउड है, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये आपको पता होने चाहिए. अब इसके अंदर होता ही है कि जो आपका पब्लिक क्लाउड है, पब्लिक क्लाउड वो होता है जिसके अंदर आपका कस्टमर एंड प्रोवाइडर आर डिफरेंट कंपनीज. क्या मतलब, एक सेकेंड, प्रोवाइडर आर डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट कंपनीज. इसका मतलब ये होता है कि यार लेट्स से, अगर आप लोगों में से किसी ने गूगल ड्राइव की सब्सक्रिप्शन लेनी हो, लेकिन आप हो कंपनी कंपनी XYZ, ओके, आप हो कंपनी XYZ एंड हमने लेनी है गूगल ड्राइव. अब ये आप मुझे एक बात बताओ, कंपनी XYZ एंड गूगल ड्राइव ये एक कंपनी है? गूगल XYZ क्यों, गूगल ड्राइव, माय बैड. अब ये एक गूगल की कंपनी है, दूसरी आपकी कोई कंपनी होगी XYZ नाम से, तो ये तो अलग कंपनी है. जब हम कोई ऐसे क्लाउड स्टोरेज लें जिसके अंदर हमारा कस्टमर एंड द प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म दे आर डिफरेंट कंपनीज, तो दैट टाइप ऑफ क्लाउड इज बेसिकली नोन एज पब्लिक क्लाउड. देन वी हैव अ सेकंड टाइप ऑफ क्लाउड, दैट इज बेसिकली नोन एज, एक सेकंड कलर चेंज करना चाहिए, दैट इज नोन एज अ प्राइवेट क्लाउड. प्राइवेट क्लाउड. प्राइवेट क्लाउड क्या होता है? प्राइवेट क्लाउड के अंदर एक गेम आ जाती है. इसके अंदर एक बड़ी खास गेम ये आती है कि यार ये एक डेडिकेटेड एनवायरनमेंट होता है. सो वी हैव अ डेडिकेटेड सॉर्ट ऑफ एनवायरनमेंट behind a company behind a company फायरवॉल का मतलब ये है कि यार हमारा एक ही, ये फायरवॉल अभी हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे, लेकिन इस फायरवॉल का मतलब ये होता है कि यार हमारे जो सिक्योरिटी की लेयर होती है ना वो एक है. तो मतलब हमारे पास जो क्लाउड की सिक्योरिटी और जो आपकी कंपनी की सिक्योरिटी, वो सारे के सारे एक ही सिक्योरिटी सिस्टम की है. अभी फायरवॉल का मतलब ये है कि यार ये किस तरह की दीवार होती है जो कि सारे वायरसेस को रोकती है, टाइप ऑफ, सही है. तो हमारे एक ही दीवार के थ्रू आपके जितने क्लाउड की सिक्योरिटी और जो आपकी वैसे कंपनी की सिक्योरिटी, वो एक ही उसके पीछे आती है. हमारे पास एक डेडिकेटेड एनवायरनमेंट होता है जहां पे हमारा जो कस्टमर होता है, कस्टमर एंड प्रोवाइडर, यार इसको प्रोवाइडर सही कर लो, एंड प्रोवाइडर दे आर बेसिकली इंटीग्रेटेड.
आर इंटीग्रेटेड. When I say integrated, this basically means कि यार ये एक दूसरे के साथ मिला हुआ है. किस तरह मिला हुआ है कि यार अगर मैं बोलूँ कि यार अब गूगल को ही अपनी स्टोरेज चाहिए, मे बी गूगल ने को स्टोरेज चाहिए, तो गूगल के जो एम्प्लॉयज है उनको अगर कोई स्टोरेज दी जाए, गूगल की कंपनी को स्टोरेज चाहिए, तो गूगल ड्राइव अगर वो किसी को दे, तो यार गूगल गूगल हुआ ना अपनी, और लेट से उसके जो स्टोरेज दी जा रही है उसको भी प्राइवेट रखा हुआ है कि फॉर स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग वर्क सिर्फ यूज हो सकती है. तो अब ये आपका प्राइवेट एक डेडिकेटेड सा इन्वायरमेंट सेट हुआ है जिसके अंदर आपका कस्टमर जो कि आप खुद है एंड जो आपका प्रोवाइडर है वो भी आपकी कंपनी है, वो बेसिकली एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड है. तो जो इस तरह के क्लाउड सिस्टम जो भी होते हैं वो बेसिकली नोन होता है आपके प्राइवेट क्लाउड से. फिर एक हमारे पास तीसरा टाइप आता है विच इज वेरी टाइप ऑफ, शायद आपको समझ भी ना आए कंफ्यूजिंग से, लेकिन उसको बोला जाता है हाइब्रिड क्लाउड. हाइब्रिड क्लाउड ये होता है कि यार इट इज इन वेरी सिंपल अल्फाज अगर आपसे पूछा जाए, इट इज अ कम्बिनेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड, कम्बिनेशन ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट एंड पब्लिक क्लाउड. इसका ये मतलब हुआ कि यार जो हमारा प्राइवेट के अंदर ये कि डेडिकेटेड इन्वायरमेंट है, पब्लिक के अंदर है कि डेडिकेटेड नहीं है, मतलब अलग अलग कंपनीज है. हाइब्रिड ये हो गया कि यार आप उसके अंदर मिक्स सा सीन चला सकते हैं. आप किसी इंस्टेंस पे उसको इस तरह भी चला सकते हो कि कस्टमर एंड प्रोवाइडर अलग अलग हो. एट द सेम टाइम पर मैं एक एग्जांपल भी इसकी चेक कर लेता हूँ आप लोग को बताने के लिए, दैट वे इट विल बी बेटर. गिव मी एन एग्जांपल फॉर हाइब्रिड क्लाउड. Okay, so an example for a hybrid cloud could be a bank which is storing sensitive customer data on a private cloud hosted in its own secure data center. At the same time, it is basically making use of a public cloud to run customer facing applications. तो मतलब इन सिंपल अल्फाज हम एक ही बैंक, अगर बैंक की बात करें तो अगर बैंक अपनी जो प्राइवेट डिटेल्स है, पिन वगैरह, वो किसी गूगल क्रोम या गूगल ड्राइव या इस तरह की चीजें पे ना रखे, वो अपने प्राइवेट क्लाउड में रखे, और जो अगर इस तरह की कोई एप्स वगैरह उनका डेटा तो उनको पब्लिक क्लाउड पे रखें. तो हाइब्रिड क्लाउड इन दोनों का बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है अंडर सिंगल नेम विच इज बेसिकली हाइब्रिड क्लाउड. तो आपको एक तो ये सबसे पहले पता होना चाहिए. फिर अभी हमने इसके अंदर काफी हमने पढ़ने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की, यार इनके बेनिफिट्स हमारे पास क्या आते हैं. व्हाई शुड आई गो विद what do we call it, cloud storage. So let me paste the copy this picture from the book directly. ताकि it's easy. Again, it's from your harder education book, a very goated book. सही है. So now we need to study some benefits and drawbacks. So the very first benefit is कि यार अगर किसी कस्टमर ने फाइल स्टोर किया हो तो दे कैन बी बेसिकली लिटरली एक्सेस फ्रॉम एनी डिवाइस इन द वर्ल्ड. लाइक अभी आप गूगल ड्राइव के ऊपर कोई फोटो डालो, आप अपने फोन से डिलीट कर दो, एंड मे बी इवन आफ्टर 5 years you log into your account on some other account, you can still have that file. Apart from that, देयर इसके यार अगर मेरे पास एक मैं ले लेता हूँ 10 GB क्लाउड, अगर उस 10 GB क्लाउड के ऊपर मैं अपनी सारी पिक्चर्स डाल देता हूँ, तो यार आई डू नॉट नीड टू हैव एनी सॉर्ट ऑफ एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट कि मैं कोई स्टोरेज डिवाइस अपने पास रखूँ. यार अगर मैंने ये 10 GB के, अब लोग क्या करते हैं आफ्टर वेडिंग्स एंड दीज फंक्शंस, दे बेसिकली क्रिएट अ CD DVD एंड दे यूजुअली कीप दैट विद देमसेल्फ थिंकिंग कि यार ये मैं रखूंगा, किसी का भी हमने देखनी हो तो हम वहां से देखेंगे. तो रादर देन स्टोरिंग इट विद देम एंड देन कैरिंग एन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस, इट इज बेटर कि यार अगर हम इसको क्लाउड पे डाल दें ताकि देयर विल बी नो नीड फॉर अ कस्टमर और क्लाइंट टू कैरी एन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस. अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके एक और बेनिफिट ये भी आता है आपके पास कि जो क्लाउड होता है उसके अंदर आपके पास थोड़ा रिमोट बैकअप सिस्टम भी आता है. मतलब डेटा आपसे लूज हो गया, मे बी आप कंप्यूटर, आपका फोन के अंदर डेटा एंड फोन आपका चोरी हो गया या गायब हो गया, खराब हो गया, तो अब क्या आपका डेटा सारा लूज हो गया. बट इफ यू आर यूजिंग क्लाउड स्टोरेज, द बेनिफिट इज यू कैन लिटरली गेट इट बैक फ्रॉम द वेब page and you can basically what do we call it, elevate the data loss or the disaster recovery. फिर उसके बाद ये कि सेम टू सेम यही पॉइंट यहाँ भी आ गया कि यार इफ देयर इज एनी सॉर्ट ऑफ फेलियर ऑफ हार्ड डिस्क या समथिंग, तो इट कैन अलाउ रिकवरी. एंड ऑल्सो द लास्ट बेनिफिट इज कि यार अगर आपके फोन में अभी, लाइक माई फोन, इफ इट हैज 128 GB, but maybe I need 1 TB, which is 1000 GB. If I need 1 TB space, तो मैं क्या कर सकता हूँ, maybe I can get myself a iCloud subscription, which can literally help me store all my images, all my relevant data on iCloud, and बाकी जो मेरे क्या कहते हैं apps और वो चीज़ें, वो सिर्फ 128 GB के अंदर store हो. So this is also one benefit. What are the drawbacks? Drawbacks ये हैं कि यार definitely if you do not have internet and or the internet is slow, so definitely you cannot access your data.
दैट्स द बिगेस्ट इशू। फिर उसके बगैर ये कि यार अगर मैं 1 TB हार्ड डिस्क ले लेता हूँ, 1 TB हार्ड डिस्क, दैट माइट बी लाइक 5000। जो मैं 1 TB यहाँ पे ले रहा हूँ, दैट माइट बी वे मोर एक्सपेंसिव, राइट, दिस माइट बी वे मोर एक्सपेंसिव। फिर उसके बाद एक आपके पास ये भी आता है कि एट द एंड फिर भी इतना डिफरेंस नहीं होता, लेकिन क्या कहते हैं, फिर भी आपका कॉस्ट कैन भी हाई अगर आपको बहुत बहुत ज्यादा चीजें चाहिए। एट द सेम टाइम आपको उसके साथ साथ इंटरनेट की वो भी करना होता है, तो डबल कॉस्ट आ जाता है। एक इसका ड्रॉबैक ये आता है कि यार आपको पोटेंशियली फेलियर हो जा सकते हैं। मतलब कि अगर मैं ये बोलूं कि अभी गूगल ड्राइव के ऊपर मैंने अपने ना 10 GB डेटा डाला हुआ है। वट एवर, अगर ये गूगल ड्राइव का डेटा है जो कि किसी रैंडम सर्वर के ऊपर स्टोर, नॉट ऑन अ रैंडम सर्वर, ऑन एलोकेटेड सर्वर, लेकिन इस सर्वर में कोई इशू हो जाए एंड ऑल द डेटा बेसिकली गेट्स डिलीटेड, इफ दिस हैपेंस, तो उस केस के अंदर क्या हुआ, this basically means all my data is lost, right? And so when that happens, there is a big issue कि यार जो मैंने यहाँ पे सारा डेटा स्टोर किया था वो सारा का सारा डिलीट है। एंड दिस हैज हैपेंड, वी हैव अ फ्यू एग्जांपल्स जिसके अंदर लाइक सेलिब्रिटी के फोटो हैक्स हुई थी, मेक्सिको के 2016 ब्रीच है उसके अंदर काफी इस तरह हुआ है। एक दफा अपडेट किया जा रहा था सर्वर को, तो उसके दौरान परमानेंटली डेटा लूज हो गया, वगैरह वगैरह। तो लाइक अगर डेटा करप्ट हो गया या एक्सीडेंटल डिलीट, तो इस तरह के खाते अगर हुए तो बड़े रोले हुए हैं। सो व्हाट कैन वी डू? सो व्हाट हैपन इज कि क्योंकि ये चीजें हो गई नाउ, कंपनीज व्हाट दे डू इज कि दे बेसिकली डू समथिंग नोन एज डेटा रिडंडेंसी, which in very simple अल्फाज अगर आपको समझाऊं, they are basically storing the same data is stored on multiple servers, stored on multiple सर्वर्स। सो मतलब रादर देन स्टोरिंग द डेटा जो कि मैं यहाँ पे 10 GB है ऑन वन सर्वर, इसको मैं यहाँ भी स्टोर कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ भी कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ भी कर देता हूँ, तो अगर खुदा ना खास्ता एक खराब हो जाता है तो आई कैन लिटरली हैव अ बैकअप फ्रॉम द अदर वन। सो इस प्रोसेस को बेसिकली बोला जाता है डेटा रिडंडेंसी, विच बेसिकली मीन्स के डेटा इज स्टोर्ड ऑन मल्टीपल सर्वर्स फॉर द पर्पस ऑफ रिलायबिलिटी। सो आपकी एग्जाम में आया आ सकता है कि व्हाट इज डेटा रिडंडेंसी इन टर्म्स ऑफ cloud storage, so you guys should know this is data redundancy। उसके बगैर ये यार अगर मैं ये बोलूं कि कोई concerns हो, why should one not be basically going with क्या कहते हैं cloud storage? So the very first one is basically यार you don't have power in it, loss of control। What do I mean by loss of control? Loss of control basically means कि यार all your data all your data is now with your provider, so confidential data, maybe any confidential document you might have uploaded it, your Google, yeah, whatever your provider is, he or she can have access to it. To confidential data can now be accessed by the provider, can now be accessed by the cloud provider, क्योंकि उन्हीं की सर्वर्स पे स्टोर हो रहा है। तो जब कोई चीज उनके सर्वर पे स्टोर हो रही है तो व्हाई कैन दे नॉट एक्सेस इट, राइट? समझ रहे हो ना? फिर उसके बगैर आपके पास एक सेकंड पॉइंट आता है। सेकंड पॉइंट ये आता है कि यार यू हैव दिस इशू ऑफ अ पोटेंशियल डेटा लॉस, जो मैंने अभी आप लोगों को ऊपर बताया कि लाइक मे बी समटाइम्स ड्यूरिंग बैकअप, मे बी इवन इफ नॉट सम सॉफ्टवेयर अपडेट, मे बी सम हैक अगर हो जाए, आपके सर्वर्स को कोई हैक कर दी या कोई इस तरह के हो जाए, तो यू हैव दिस बिग इशू रिलेटेड टू डेटा लॉस। तो ये हमारे पास दो कंसर्न्स भी इसके रिलेटेड आते हैं वगैरह वगैरह, एंड आपको समझ आ जाएगी कि यार इसके अंदर क्या कुछ खाते हैं। नाउ एट द एंड वी जस्ट हैव वन थिंग, परहैप्स वो भी हो गया। सो ये आपको पता होना चाहिए कि क्लाउड स्टोरेज के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या उनके कंसर्न्स हैं, व्हाट इज डेटा रिडंडेंसी, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्लाउड स्टोरेज, एंड क्योंकि इट्स लिटरली 2:50 AM राइट नाउ, सो आई गेस it's enough. I guess we have a recording for like almost 1 hour 10 minutes, 1 hour 13 12 minutes. So काफी लंबा वो हो चुका है, and I don't have any more John in me. So we are just left with one minute small topic which might just take like 30 minutes more. That is regarding network cards 3.4. So even though I was planning on ending it today, like, unfortunately that didn't happen. So if I do get time over the weekend, I will try to upload chapter number 3.4 की video. If not, we are going to end chapter 3 inshallah in our Monday's class.
So with that, if you have any sort of questions, do reach out